Hello, welcome students. Now we are going to begin with example 8. I am going to explain it here only. You need to execute it in your computer or mobile. Now the question is, write a program to calculate total points earned by both the teams in each round. So suppose that there are two teams and we need to calculate the total point earned by both the team in each round. Now if we talk about the solution, so here you can see, first of all we have imported the panda, like we have written import pandas as PD. Then after we have created two dictionary D1 and D2. In D1 the first thing is P1 100 700 2 975 3 974 900 comma, and then P2 1 490 463 574 590, and similarly we have created another dictionary D2 with P1 and P2 and respective values. So first you need to create these two dictionary. Now we are creating two data frame df1 and df2, such as df1 is equals to pd dot data frame bracket में d1. That means this df1 will be created on behalf of this dictionary d1, and then df2 is equals to pd dot data frame d2. That means it will take values from the d2 dictionary. Now first of all we are going to print the team 1 performance. So if we print team 1 performance, so we have taken a message team 1's performance and then we have printed df1. So student, in the output part you can see the team 1 performance is displayed like P1 and P2, these are the column names, and 1 2 3 4 are the row numbers, and here we are having value 700 975 970 900 490 460 570 590. Then after we have printed team 2's performance, so for that we have written team 2's performance and then we have taken the printout of df2. So here in this case you can see team 2 performance will be displayed, and in team 2 performance again we are having P1 and P2, these are the column headers, and 1 2 3 4 these are the row numbers. Now in both of the example you can see, in both of the data frame you can see कि the column name is same, that like P1 and P2, and row numbers are also same 1 2 3 4. Now if we want to combine both of the data frame, so at that time we need to have a binary operator plus that works on both the operand. In this case the operand is data frame. So for that we have written print points earned by both teams, print df1 plus df2. So here plus operator is used to add the values of df1 and df2. So student, you can see here 1100 is the first value here and 700 is the first value here. So 700 plus 1100, now the value of the resulting data frame would be 1800. Then 490 plus 1400, it will become 1890, and respective values will be placed here. So I think you all are now getting my point, how it actually works. Now moving forward, the next solution, the next example is given here. Consider the points earned by two teams and display how much point difference team 2 has with team 1. तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वी यूज़ सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम आर सब यूज़ करेंगे. तो आर सब मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं डायरेक्ट तो भी आप कर सकते हैं, और यू कैन आल्सो हैव माइनस साइन. तो हियर वी हैव क्रिएटेड द पांडा सीरीज़, इंपोर्ट पांडा एज पीडी हमने यहाँ पे लिखा. अब इसके बाद df1 और df2 को क्रिएट करेंगे. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये उसमें सेम होगी. इतनी लाइन आप उस प्रोग्राम के अंदर भी रख देंगे. मतलब ये दोबारा से आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इस लाइन को आपको वहाँ पे पहले टाइप करना होगा. नाउ
तो इस प्लेस होल्डर जो यहाँ पे दिया है df1 एंड df2 क्रिएटेड आर लोडेड, तो इस केस में आपको d1 d2 पहले बनाना होगा, फिर df1 df2 बनाना होगा, तो ये आप बना लेंगे। देन आफ्टर प्रिंट टीम्स पॉइंट डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट df1 डॉट आर सब df2, या हम लिख सकते हैं df2 डॉट सब df1। तो df1 डॉट आर सब df2 मतलब हो जाएगा df2 माइनस df1 आर सब रिवर्स ऑर्डर में। और अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं डायरेक्ट तो उस समय हमको df2 से कॉल करना होगा, तो हमें लिखना होगा df2 डॉट सब df1। तो इन बोथ ऑफ द केसेस वी आर हैविंग द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, तो ये जो आउटपुट है दिस विल करस्पॉन्ड टू दैट ओनली। Now moving forward, the next example, that is example number 10, you can see given two data frame storing points of a two-player team in 4 round. Write a program to calculate average point obtained by each player in each round. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एवरेज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया पांडा एस पी डी, और df1 df2 को हमने क्रिएट कर लिया, लोड कर लिया। तो बच्चों जो मैंने यहाँ पे बताया था यही सेम लाइंस आपकी, ये जो सेम लाइंस हैं इतनी क्रिएट करना और लोड करना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक df2 तक क्रिएट किया और इसको डिस्प्ले कर लिया। ये आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, मतलब ये वहाँ पे आप रखेंगे। देन आफ्टर तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम 1 की परफॉर्मेंस और टीम 2 की परफॉर्मेंस, दोनों df1 df2 को हमने डिस्प्ले कर लिया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। नाउ एवरेज पॉइंट स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर, तो हमको हर एक प्लेयर का एवरेज पॉइंट चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए वी एक वेरिएबल लेंगे, ये भी एक डेटा फ्रेम हो जाएगा। तो ए वी इज इक्वल्स टू df1 प्लस df2, दोनों को हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही डेटा फ्रेम है यहाँ पे, तो हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमें एवरेज पॉइंट मिल गया और उसके बाद हमने प्रिंट कर लिया ए वी को। तो इस केस में स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 700 ये प्लस 1100, तो ये हो गया आपका 1800, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 900। तो ये जो 900 है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसे ही 490 प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू है उस दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसे ही 2 की वैल्यू को इससे हम ऐड करेंगे, और इस तरीके से ये जो रिज़ल्टिंग रिलेशन है, ये रिज़ल्टिंग जो डेटा फ्रेम है वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, हम डिवीज़न करना चाहते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। तो दीज आर द बाइनरी ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द डेटा फ्रेम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विथ पांडा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे मिन मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, एवरेज निकालना, ठीक है। तो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर विद द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। आपने माई स्कूल में तो पढ़ा है, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे उसे अब आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखिए, पाइथन पांडा इज़ अ वाइडली यूज्ड डेटा सिंस लाइब्रेरी एंड इट ऑफर्स मेनी यूजफुल फंक्शंस। Among many other functions, the function offered by Panda also include many useful statistical functions. तो पाइथन में, पाइथन पांडा में आपको कई सारे फंक्शंस मिलते हैं। जैसे आपने अभी IT रो, IT आइटम देखा था, फिर आपने आर सब देखा, ऐड देखा, आर ऐड देखा, फिर आपने डिव देखा। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी यहाँ होते हैं, और जिनका हम एग्रीगेट वैल्यू गेट करने के लिए करते हैं यूज़। तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम। हियर वी शैल टॉक अबाउट कॉमन स्टैटिस्टिकल एंड एग्रीगेट फंक्शंस एज सजेस्टेड बाय द सिलेबस। नाउ फॉर ऑल द फंक्शन बीइंग कवर्ड इन दिस सेक्शन वी शैल बी यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। तो बच्चों, ये जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है
इसे आप देख लीजिए, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी आप देखो यहाँ पे आई प्रॉड नाम की IP रॉड नाम की बनाई गई है। इसमें देखो राइस, वीट, पल्स एंड फ्रूट्स, ये इस तरीके से 4 ये क्या हो जाएंगे आपके, ये कॉलम नेम हो जाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इसकी राइस की प्रोडक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमने दे दी। ऐसे ही वीट में भी हमने आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश हमने दे दिया है। लेकिन केरल में आप देखेंगे कि वीट का प्रोडक्शन क्या है, नैन है, मतलब है ही नहीं। ऐसे ही पल्स में भी आपने देख लिया और ऐसे ही फ्रूट्स में भी देख लिया। तो एक बार पहले ये हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। ये आपको खुद से करना होगा बच्चों, आपको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल फ़ोन में फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट दिस डिक्शनरी एंड देन द डेटा फ्रेम, लाइक आपको लिखना होगा prod f इज इक्वल्स टू pd.dataframe और IP rod। नाउ अब जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रूट, पल्स, राइस, वीट, ये हमारे कॉलम नेम हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये हमारे रोज़ हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे आ जाएंगी। तो अब हम इसको बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये जो डेटा फ्रेम है सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा। मतलब आप जब एग्जांपल लेके चलेंगे तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम एंड देन आप उस पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मिन एंड मैक्स। तो बच्चों देखो ये 2 तरीके से काम करता है, ये हॉरिजेंटली भी काम करेगा और वर्टिकली भी काम करेगा। तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली में हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस 2 होती हैं, एक्सिस 0 होती है और एक्सिस 1 होती है। तो एक्सिस 0 के अलोंग हम काम कर सकते हैं या हम एक्सिस 1 के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद द एक्सिस। ओके, सो द मिन एंड मैक्स फंक्शन फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डेटा, दैट इज डेटा फ्रेम इन आवर केस। तो मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके डेटा फ्रेम से। नाउ लेट अस सी हाउ दीज वर्क। तो सिंटेक्स जो होता है मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन को यूज़ करने का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है। हम लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट मिन, फिर एक्सेस इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, स्कीपना इसकी वैल्यू एंड न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे ही मैक्स में भी केवल हम डॉट मैक्स लगा देंगे, बाकी चीज़ें हमारी सेम होंगी। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए इसको, तो पहला है एक्सिस। तो 0 और 1 हमारी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मिनिमम और मैक्सिमम इज़ कैलकुलेटेड अलोंग एक्सिस 0 और एक्सिस 1। दूसरा है स्किपना। तो ट्रू और फॉल्स एक्सक्लूड NA नल नैन वैल्यू व्हेन द कंप्यूटिंग द रिज़ल्ट। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया या फॉल्स कर दिया तो उसके आधार पे तो इसको बोलेंगे स्किप NA, मतलब NA की वैल्यू को स्किप करेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि अगर आप ट्रू करेंगे तो जो NA है या NaN है या नल है इसको स्किप कर देगा और अदरवाइज़ उसको भी लेके चलेगा। एंड लास्ट है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। तो इसकी भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, तो ये केवल इंक्लूड करेगा फ्लोट को, इंटीजर को, बुलियन को। तो इंक्लूड ओनली फ्लोट, इंट, बुलियन कॉलम्स फॉर कैलकुलेटिंग मिन एंड मैक्स इफ नन विल अटेम्प्ट टू यूज़ एवरीथिंग दैट यूज़ ओनली न्यूमेरिक डेटा। तो यू कैन यूज़ skip NA and numeric only argument if your data frame mainly contain numeric data. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखें prod df डॉट मिन, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो फ्रूट कॉलम है, जैसे फ्रूट जो कॉलम है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 44.1 है। आप देख सकते हो ये 44.1 आ रहा है। पल्स में 1.7, राइस में 814.6 एंड वीट में 0.5।
यहाँ पे देखो 0.5 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे स्किप एन कर न किए रहते तो इस केस में क्या होता कि यहाँ पे एन वाली वैल्यू आ जाती। ऐसे ही मैक्स के केस में भी आप देख सकते हैं। तो मैक्स के केस में देखो यहाँ पे जो फ्रूट की मैक्सिमम वैल्यू, पल्स की मैक्सिमम वैल्यू, राइस की मैक्सिमम वैल्यू और वीट की मैक्सिमम वैल्यू, सबकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है। फिर उसके बाद हमने लिखा prod df डॉट मिन। अब यहाँ पे हमने दे दिया एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो देखो अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो ये मान के चलता है एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस इज इक्वल टू 0 मतलब कॉलम वाइज। और अगर हम एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दें तो उस समय हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटली मतलब रो वाइज। तो इस केस में देखिएगा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये इस तरीके से लेके चल रहा है। और उस हर एक रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है एक्सक्लूडिंग एन ये फाइंड करेगा। तो रो नंबर 1 में जो मिनिमम वैल्यू 931 है, 2 में 818 है, केरल में 1.7 है, पंजाब में 33.0 है, त्रिपुरा में 0.5 है, उत्तर प्रदेश में 2184.4 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू गेट होती है। दूसरी चीज़, अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करें और मैक्स फंक्शन के यूज़ करने में हम एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 रख दें तो ये भी अब रो के आधार पे चलेगा। तो आंध्र प्रदेश में आप देखो 783.30, गुजरात में, पंजाब में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड हो रही है। नाउ सिंस द अबव डेटा फ्रेम कंसिस्ट्स मोस्टली न्यूमेरिक वैल्यूज, द आर्ग्यूमेंट स्किप एन एंड न्यूमेरिक वैल्यू वॉन्ट मेक मच द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें prod df डॉट मिन skip n इज इक्वल्स टू ट्रू, न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल्स टू ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रूट, पल्स, राइस, वीट ये हमारी वैल्यू आ रही हैं और ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एन को स्किप करके आ रही हैं। दूसरा, मैक्स में भी अगर हम देखें, अगर हम स्किप एन इज इक्वल्स टू ट्रू कर दें तो जो एन था उसको स्किप करके जो रिज़ल्ट है वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ गिवन अ डेटा फ्रेम DFMKS that stores highest mark in 5 subject across 4 sections of the school। तो देखिए यहाँ पे अगर अब हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में सेक्शन ABCD है और ABCD के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, IP में, मैथ में जो मार्क्स हैं रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप देख सकते हो ये हाईएस्ट मार्क है जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 11 की, तो ये इसी पे बेस्ड है। तो देखिए अब 11, 12, 13 ये 3 एग्जाम्पल इसी के आधार पे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एग्जाम्पल 11 को देखें। कंसीडर द डेटा फ्रेम DFMKS गिवन अबव, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल सेक्शन। तो बच्चों यहाँ देखो हमने PD को इंपोर्ट किया, numpy को इंपोर्ट किया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे गिवन DF मार्क को क्रिएट करना होगा और लोड करना होगा। तो इसको पहले क्रिएट करने के लिए आप एक D डिक्शनरी बना लेना। उस डिक्शनरी में जाके सबसे पहले आपको A बनाना पड़ेगा। अब A में आके आप अकाउंटेंसी, उसकी वैल्यू जैसे 99 सिंगल कोट में, फिर कॉमा लगा के इकोनॉमिक्स की वैल्यू, फिर इंग्लिश की वैल्यू, फिर IP की, फिर मैथ की वैल्यू, फिर आप B सेक्शन के लिए चलोगे, फिर C के लिए, फिर D के लिए। तो पहले आपको एक डिक्शनरी बनानी होगी और उसके बाद आपको DFMKS इज इक्वल्स टू लिखना होगा PD डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में आप D को पास कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो डिक्शनरी है वो के आधार पे हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम मार्क। तो हम लिखेंगे प्रिंट मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे कि DF1, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट DFMKS डॉट मैक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले बच्चों आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी, फिर उसके आधार पे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा और मैक्सिमम वैल्यू गेट करने के लिए हम DFMKS डॉट
मैक्स एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच स्टेटमेंट वुड यू चेंज इन द अबव प्रोग्राम सो दैट इट कंसिडर ओनली नॉन एन वैल्यूज़ फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो उस केस में देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम चीज़ें रहेंगी। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंट डी एफ एम के एस डॉट मैक्स एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। ये जो हम लिखे थे इसके जगह पे हम ये लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने स्किप एन इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है। ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस केस में ये क्या करेगा कि जहाँ पे भी एन ए वैल्यू आ रही है जिस पर्टिकुलर रो में, उसको स्किप कर देगा। नाउ एग्जाम्पल 13, कंसीडर द मार्क्स data frame dfmks given above. Write a program to print the maximum mark scored in a section across all subject। तो इसमें बच्चों देखो एक्सेस 1 के लिए नहीं, एक्सेस 0 के लिए चलना है। तो एक्सेस 0 के लिए अगर हमें चलना है तो उस केस में हमें एक्सेस इज इक्वल टू 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस 0 ही हमारा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन आपको इंपोर्ट करना है पांडा को, फिर नमपाई को, फिर आप डी एफ एम के एस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए फिर अगेन आप एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी बना के उसके बाद उसमें वैल्यू डाल देंगे। डालने के बाद आप डी एफ एम के एस को क्रिएट कर लेंगे। एक बार जब आपने डी एफ एम के एस क्रिएट कर लिया बाय राइटिंग डी एफ एम के एस इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डी, देन you need to write print maximum marks scored in each section print df mks dot max, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डॉट मैक्स के ब्रैकेट में एक्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप अभी तो आपने देखा कि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन कभी अगर आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो दी गई है उसके इंडेक्स को गेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो यू कैन गेट द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम यूजिंग आई डी एक्स मैक्स। आई डी एक्स मतलब इंडेक्स मैक्स एंड इंडेक्स मिन फंक्शन एज शोन बिलो। तो उसके लिए आप लिखेंगे डी एफ ऑब्जेक्ट डॉट आई डी एक्स मैक्स और डी एफ ऑब्जेक्ट डॉट आई डी एक्स मिन। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो जैसे एग्जांपल में कि फॉलोइंग स्क्रीनशॉट शो इट फॉर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डी टी एफ 5 गिवन बिलो। तो आप लिखेंगे अगर डी टी एफ 5 डॉट आई डी मिन, तो उस केस में जो हमारा मिनिमम वैल्यू था उसकी आई डी मिलेगी। देखो यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ पे आपने लिखा आई डी एक्स मतलब इंडेक्स मैक्स, तो यहाँ पे मिल रहा है 2 0 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं हम, और मिनिमम और मैक्सिमम के इंडेक्स वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मॉड, मिन एंड मीडियन। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि एवरीवन प्लीज़ एग्जीक्यूट ऑल द एग्जाम्पल्स दैट इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9 to 13 and send the screenshot on my WhatsApp number. And if in case of any doubt, feel free to ask your doubts. Thank you.